18 23 नंबर का सवाल है। ऑनलाइन वाला आपको स्क्रीन दिख रही है, तो थोड़ी देर में स्क्रीन दिख जाएगी। You are the engagement partner in Hassan Abdali and Company Chartered Accountants. One of your client is Falcon Limited, which owns 6 shopping malls and 4 office building complexes in different cities for rental purposes. FL also constructs and sells the residential apartment in the major cities of Pakistan. The following matters were discussed in the planning meeting of the audit for the year ending 31 December 2018. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? Discuss the audit risk that exists in the above scenario and suggest the key audit procedure. हम audit procedure भी नहीं पढ़ रहे, अभी हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। हम पॉइंट 1 नहीं पढ़ रहे, हम पॉइंट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है भाई? कंपनी का बिजनेस 6 शॉपिंग मॉल्स है, 4 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं फॉर रेंटल पर्पसेस, और कंपनी ऑफिस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट भी करती है। A shopping mall located in Multan has been witnessing low turnout of customers. The company has been trying to persuade its tenants for not vacating their shops and have offered that they pay 50% of the rent and pay the remaining amount when the conditions improve. Some of the tenants have accepted the FL's offer and have formally negotiated a 2-year relaxation period. The company's head office was shifted to a central location in a newly constructed building. 2 floors of the building, which were surplus to the company's need, have been rented out to the Limited, which is owned by a director of the company. MML provides maintenance service to various building projects. The company and the MML have agreed that FL will not charge any rent for the 2 floors in consideration for free maintenance of Multan shopping malls and the head office. Construction of 4 residential projects started during the year. The projects are in the various stages of completion. About 70% of the apartments have already been. The company offers different terms to its customer depending upon which options they choose. The balcony of one of the apartment constructed in 2012 fell off, severely injuring 3 persons. The news surfaced in the media and caused severe criticism on FL, and a show cause notice was also received by the FL from a regulatory authority. The company's management is of the view that the construction was up to the required standard and the residents have been made some modification which caused this incident. प्यारे बच्चों, एक सवाल आपके सामने, सुन लीजिएगा मेरी बात, खुदा का वास्ता सुनिएगा। इस सवाल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑडिट रिस्क। इसका मतलब है मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, मैंने ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने इसको ड्राफ्ट करना है। अब जब ड्राफ्ट करें तो सवाल में आपको ऑडिट रिस्क नहीं दिए हुए, सवाल में आपको क्या दिए होंगे? रिस्क फैक्टर। सवाल में आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसी दी हुई होगी जिससे आप एक इंफॉर्मेशन पकड़ोगे और आपको कि इसकी वजह से यहाँ पे ये रिस्क हो सकता है, ये काम आपने करना है। और ये काम आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 2 जो लिखा हुआ है, शॉपिंग मॉल, पहला पैराग्राफ तो पढ़ लिया ना, पार्टनर है जिस कंपनी का बिजनेस ये पढ़ लिया, इसको पढ़िएगा वापस से। और जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है? आ शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन मुल्तान हैज बीन विटनेसिंग द लो टर्नआउट ऑफ। ये जो पूरा पैराग्राफ पॉइंट नंबर 2 है प्यारे बच्चों, उसको तमीज से पढ़ना है। सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं, और इस पॉइंट को पढ़ के क्या क्या ऑडिट रिस्क हो सकते हैं आपने वो लिखने 5 मिनट प्यारे बच्चों, जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ऑनलाइन वाला आपका क्लियर हो बेटा? सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ के रिस्क आइडेंटिफाई करना है।
अगर मैं आपके साथ सवाल डिस्कस करूं ना, और सवाल को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस करें, सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा प्लीज। दुल्हन साहब रेडी है सब? अच्छा, देखें, you are the engagement partner in Hassan Abdali and Company Chartered Accountant. One of your client is Falcon Limited, which owns, हाँ जी जल्दी छेती छेती, which owns 6. It means अगर मैं एंटिटी में नेचर देखूं तो मुझे पता चलता है इसके नेचर ऑपरेशंस क्या है, इसके पास क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताते हैं। 6 शॉपिंग मॉल्स है, ऐसा ही है, और जल्दी छेती छेती 4 ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं फॉर रेंटल पर्पसेस, और इसके अलावा द कंपनी ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एंड सेल दी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन द मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। क्या यहां तक क्लियर है? अब वो आपको सवाल दे रहा है, सी एफ फॉर शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन, अब ये सवाल कहां से आया है प्यारे बच्चों, कहां से आया है? शॉपिंग मॉल। यहां से इसने एक सवाल पूछा आपसे, यहां पे मजीद इंफॉर्मेशन दी इसने। अ शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन, अच्छा ये दोनों रेंटल पर्पस के लिए, हाँ ऐसा ही है ना। One of your client is Falcon Limited, which owns 6 shopping malls and 4 offices building complexes in different cities for, ये दोनों चीजें रेंटल पर्पस के लिए। डन हो गया भाई यहां तक? अब लिखा हुआ क्या है? अ शॉपिंग मॉल, सुन लीजिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अ शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन मुल्तान हैज बीन विटनेसिंग, इसने कहा भाई एनवायरनमेंट की जब अंडरस्टैंडिंग ली तो पता चला इंडस्ट्री में आके क्या हो रहा है, जल्दी छेती छेती क्या हो रहा है भाई, इस शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही है। जब उस मॉल के अंदर कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो लोग रेंट पे लेके बैठे हुए दुकानें, ये किराए जनरेट नहीं कर पा रही है, पैसे जनरेट नहीं कर पा रहे। तो आगे क्या लिखा इसने? आगे लिखा, द कंपनी हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड इट्स tenants for not vacating their shops and have offered that they pay 50% of the rent and pay the remaining amount when the conditions, some of the tenants have accepted the FL's offer and have formally negotiated a 2-year relaxation period। ये एक सवाल उसने आपको दिया है प्यारे बच्चों। हुआ क्या? कस्टमर कम हुए, तब कस्टमर कम हुए, कंपनी ने अपना ऑपरेशन को चेंज करा। कंपनी ने कस्टमर से क्या कहा? कंपनी ने कहा यार बात सुनो, आप वेकेट ना करो, आप यहां पे रहो, 50% पैसा अभी पे कर दो, रिमेनिंग 50% कब पे कर देना? जब कंडीशंस क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों? इंप्रूव हो जाएंगी। कुछ लोगों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और क्या कहा है कि कुछ पैसा अभी देंगे, और जो कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी तो मतलब 50% पैसा अभी देंगे और 50% पैसा कब देंगे? 2 साल बाद देंगे। ये आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रिस्क फैक्टर्स है। क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया बच्चों आपने? दोस्त क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया? हाँ तो मैडम सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप पॉइंट नंबर 2 में क्यों जा रहे हैं? आप पॉइंट नंबर 1 देखें ना सिर्फ, मतलब पॉइंट नंबर 1 मतलब जो मेन पैराग्राफ दिया, कंपनी का बिजनेस क्या है? रेंटल। इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आनी चाहिए? जल्दी से बताते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक लैंड और बिल्डिंग और मैं उसको किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ? रेंटल पर्पस के लिए दे रहा हूँ, तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेरा पहला ऑडिट क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी छेती छेती, मेरा पहला ऑडिट क्या हो जाएगा? जल्दी, हाँ जी, मेरा सबसे पहला रिस्क हो जाएगा कि जी कंपनी ने रेंटल पे दिया हुआ है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहली चीज
कि फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी है फेयर वैल्यू, भाई दो पॉलिसी, या तो कॉस्ट मॉडल होगा, तो अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी फेयर वैल्यू है तो रिस्क केस मैनेजमेंट ने फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं की होगी, एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं की होगी। पहला रिस्क सिंपल है भाई, फेयर वैल्यू आपने सही डिटरमाइन। दूसरा रिस्क, अगर तो यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरा किस पे रिकॉर्ड हुआ है, इट मींस ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी क्या हो चुकी है, जल्दी जल्दी इंपेयर्ड हो चुकी है। द रिस्क केस मैनेजमेंट ने IAS 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड, क्यों 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी, बिकॉज इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उसको क्या चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट। ये जो assumptions है, ये assumptions रीजनेबल, नोट नहीं करना है, सुनना है सबने, ये assumptions रीजनेबल, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की ड्राफ्टिंग है प्यारे बच्चों, कि मैनेजमेंट ने जो assumptions यूज करी होगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मे नॉट बी। आप समझ रहे, आपको तो दूसरे पॉइंट से पहले मेन पैराग्राफ से दो रिस्क आइडेंटिफाई हो गए यार, सही है। पहला रिस्क फेयर वैल्यू से डिटरमाइन नहीं करी, दूसरा आप कहोगे कि जी क्या होने जा रहा है, कस्टमर्स कम है, लो टर्न आउट ऑफ कस्टमर, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ overstatement of investment property because investment property may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per why, because the assumptions used in the impairment such as future cash flows and discount rates may not be। ये मैं क्यों बता रहा हूं इस तरह, बिकॉज अगला स्टेप हमारा ऑडिट प्रोसीजर का होगा, तो जो मेरा रिस्क होगा उसी के अगेंस्ट मेरा प्रोसीजर होना चाहिए। अगर मेरे रिस्क में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो मेरे प्रोसीजर में भी ये वर्ड्स आने चाहिए ताकि मैं इनको कवर कर सकूं। तो रिस्क बताएं, उस रिस्क के अगेंस्ट आपने क्या बताना है। ये पहला सवाल 20-25 नंबर का मैंडेटरी क्वेश्चन होता है आपका। मैंडेटरी का मतलब है ये लाजमी आता है, कोई पिछले 15-20 अटेम्प्ट में ऐसा सवाल नहीं है जिसमें रिस्क का सवाल ना आया हो। ये आपका 25 नंबर का सवाल लाजमी है, रिस्क एंड प्रोसीजर 25 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, ये आपसे लाजमी पूछ रहा होता है। यहां तक बात समझ आती है। अब सेकंड चीज क्या आती है, अब सुनिएगा, हम एक ही पॉइंट को लेके बैठे हैं, मैं अभी और इसलिए लेके बैठा हूं बिकॉज मैं सोचने के क्यों पहला सवाल यही करवा रहा हूं, इसी पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूं, बिकॉज इसी पॉइंट से आपको समझ में आएगी कि यार कहने को तो 4 लाइन है, लेकिन 4 लाइनों से मैं 4 रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं। 2 रिस्क क्लियर है प्यारे बच्चों, पहला रिस्क, दूसरा रिस्क क्लियर है हमारे पास। सुनिएगा मेरी बात को, लोग छोड़ के जा रहे हैं, टेनर जिनको किराए पे दिया हुआ है वो छोड़ के जा रहे हैं। डिसाइड क्या हुआ, 50% आज, 50% जब कंडीशंस इंप्रूव्ड हो जाए। प्यारे बच्चों फौरन से एक और रिस्क आ गया, किस चीज के ऊपर रिस्क आ गया भाई, आप, मैं कहता हूं 100 रुपए रेंट है, 50 रुपए अभी दे दो, 50 रुपए कब देना, नहीं 2 साल बाद नहीं, 50 रुपए कब देना, जब कंडीशन इंप्रूव हो जाए। आप आज 100 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर अब एक वेरिएबल कंसिडरेशन शामिल हो चुकी है। आपको ये असेस करना पड़ेगा कि 100 रुपए में से आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा नहीं। जो पैसा आपको लगता है नहीं मिलेगा उसका आज आप रेवेन्यू रिकॉर्ड, बिकॉज रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कंडीशन है कि फ्यूचर इकोनॉमिक, इट इज प्रोबेबल कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आपको लग रहा है 100 में से 30 रुपए मिलेंगे ही नहीं, हालात इंप्रूव, देखिए ना आज जिस बंदे ने 15 दिन पहले अरेंजमेंट किया होगा, आज पता है मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं आप सबको, आपको लगेगा आज बैठ के कि यार 2 साल बाद भी कंडीशन इंप्रूव होंगी, वो कहेगा नहीं यार इतनी इंप्रूव नहीं होंगी कि मेरा 100 के 100 रुपए पे। प्यारे बच्चों तीसरा रिस्क मेरा किस चीज के ऊपर आ गया, जल्दी से बता दे, तीसरा रिस्क किस चीज के ऊपर आ गया, रेवेन्यू के ऊपर। और मैं कहूंगा देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो कर लिया है, लेकिन IFRS 15 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज इसके अंदर एक प्रोबेबल है कि पैसा रिसीव। तीसरा रिस्क तो आपको हिट करना था रेवेन्यू के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि आप 100 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप कितने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, लेट से जल्दी जल्दी 70 रुपए का रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल, समझ रहे, मैं 50 को 100 का ही समझ रहा हूँ। 100 रुपए का रेवेन्यू था, 50 रुपए तो वो देने को तैयार है, रिमेनिंग 50 रुपए जब कंडीशंस, भाई कंडीशन इंप्रूव होंगी नहीं होंगी आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कितना पैसा रिसीव होगा, वो रेवेन्यू है आपका। जो आपको लगता है पैसा रिसीव ही नहीं होगा वो रेवेन्यू थोड़ी, बिकॉज रेवेन्यू का जो 5 मॉडल है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जी रेवेन्यू के लिए ये लाजमी है कि क्या फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर। जो कंपनी आज स्टील मिल को सेल कर रही है ना, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करती, और स्टील मिल को सेल होती है, क्यों होती है, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ से एक कंपनी को बोलेगी दूसरी कंपनी को कि यार बेचो, लेट से एसएसजीसी को कहती है स्टील मिल को गैस दो, और वो गैस देती है और उसको पता है कि पैसा एसएसजीसी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता, लेकिन गैस दे दी है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज
क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसको पता है कि स्टील मिल से पैसा नहीं आना। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे? यहां तक डन हो गया? अच्छा, अगला मसला किस चीज के ऊपर था? अगला मसला रिसीवेबल के ऊपर था। रिसीवेबल का क्या मसला है? जल्दी। ओवरस्टेट हुआ है। क्यों ओवरस्टेट हुआ है? बैड डेट नहीं। देखिए ये सबसे बड़ा मसला है। अगला रिस्क आपका अकाउंट रिसीवेबल का है, और अकाउंट रिसीवेबल का मसला ये है कि इस रिसीवेबल के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है। भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 साल बाद पैसे देना, मैं उसको क्या रहा हूं, मुझे अगर अगर यही बंदा बैंक से लोन लेके बैंक को 2 साल बाद पैसे देता, इट मींस उसकी फाइनेंसिंग भी मैं कर रहा हूं। तो ये चीज टेक्निकली 100 रुपए की नहीं है, ये 90 रुपए की। 10 रुपए इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट शामिल है? फाइनेंसिंग का कंपोनेंट शामिल है। मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा मेरी बात, यहां तक बात समझ आ रहा है? अगर एक चीज मुझे कैश फ्लोज 2 साल बाद मिल रहा है, तो मैं उसको रिसीवेबल पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। बच्चों ये याद है ना, क्यूटी में पढ़ते थे, एस इक्वल टू पी इंटू 1 + i की पावर -n। दोस्त याद है ना यार हमें ये? तो अगर मेरे पास, अगर मुझे एक पैसा 2 साल बाद रिसीव हो रहा है, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज मैं आज उसको एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? रिस्क है कि अकाउंट रिसीवेबल में क्या इन्वॉल्व है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया होगा। डिस्काउंट क्यों नहीं? मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड सही नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड सही नहीं किया होगा? या तो डिस्काउंट रेट गलत दिया होगा, या एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो लगता है। देखें दो चीजें ना, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे फ्यूचर पेमेंट चाहिए और डिस्काउंट रेट चाहिए। दो चीजें चाहिए ना। द रिस्क इज, डिस्काउंट रेट गलत है, द रिस्क इज फ्यूचर में कितना पैसा रिसीव होगा वो प्यार बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अब जब आपने अकाउंट रिसीवेबल, इट मींस अब अकाउंट रिसीवेबल 70 पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। अकाउंट रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड हो रहा होगा? 60 पे। और 10 रुपए का आपका क्या आ जाएगा? आपके पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? 10 रुपए का आपके पास एक डेफर्ड इनकम आ जाएगी। ये आज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये ओवर दी 2 इयर्स रिकॉर्ड होगा। बिकॉज 2 साल के बैंक अगर आपको आज 2 साल के लिए लोन देता है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट आज रिकॉर्ड नहीं करता, वो ओवर दी। तो यही काम आप नहीं करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अब मैं कहता हूं ये जो रिसीवेबल 60 रुपए का है, और कस्टमर टेनेंट्स के हालात खराब है, पता नहीं कस्टमर आए ना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? मेरा रिसीवेबल क्या हो चुका है? जल्दी से बता दें। मेरा रिसीवेबल इंपेयर्ड हो चुका है। मेरा रिसीवेबल में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? जल्दी जल्दी। बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड। आप समझ रहे हैं? आपने ये रिस्क पहले लिख दिया होगा प्यारे बच्चों। मेरा स्ट्रक्चर नोट, अकाउंटिंग कैसे होगी आप ये सोचे। सबसे पहले तो बात, रिसीवेबल यतीम व मस्कीन अकाउंट है। पहले रिसीवेबल कभी भी डेबिट नहीं होता, पहले क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्या होगा? कोई ना कोई रेवेन्यू, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई होगी, या कोई ना कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हुई होगी, तभी करस्पॉन्डिंग चीज आती है। आपने कहा मैंने सेल करी है, तो रेवेन्यू क्या होना चाहिए? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल। अब मैं आऊंगा रिसीवेबल के ऊपर। रिसीवेबल के अंदर क्या इन्वॉल्व है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब इस रिसीवेबल को छेड़ूंगा मैं कहूंगा ये इसका मैनेजमेंट उसको सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। फिर मैं कहूंगा अब जो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, तब इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी? इसमें तो क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? एक और मजेदार रिस्क, अकाउंट रिसीवेबल की क्लासिफिकेशन। जो पैसा 2 साल बाद मिल रहा है, वो आपका करंट एसेट नहीं है, वो आपका नॉन करंट एसेट है। सिंपल। आइए आइए के कॉन्सेप्ट से ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो तुम लोग शायद मॉड्यूल ए वाले हो। कौन से वाले हो? पीआरसी एएफसी वाले हो? एएफसी में होता है। आइए। हाँ जी। कैफ में जो आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग होती है, या जो आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जिन्होंने इंटर में पढ़ा होगा कि जो एसेट आपको रियलाइज 1 साल के बाद हो रहा होता है, वो आपका सवाल में लिखा हुआ है 2 साल बाद पैसे मिलेंगे। प्यारे बच्चों क्या है ये मेरा क्या है? ये मेरा नॉन करंट एसेट है। द रिस्क इज मैनेजमेंट। इसको क्या क्लासिफाई किया होगा? पैसा 2 साल बाद मिलना इज नॉट द ऑडिट रिस्क। पैसा 2 साल बाद मिलना इज, पैसा 2 साल बाद मिलने से कोई रिस्क हो सकता है। और जब पैसा 2 साल बाद मिल रहा है, तो कौन कौन से आईएफआरएस कौन सा ट्रिगर हो रहा है? पहला कौन सा ट्रिगर हो रहा है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। दूसरा 2 साल बाद मिल रहा है, तो क्लासिफिकेशन का मसला है। आपने उसको सारा का सारा कहां क्लासिफाई कर दिया होगा? भाई ये करंट एसेट थोड़ी है, इसमें से एक पोर्शन आपका नॉन करंट एसेट है। क्या यहां तक? और पैसा, इनके हालात बुरे हैं। जब इनके हालात बुरे हैं, तो इट मींस आपको पैसा पे नहीं करेंगे। तो आपका रिसीवेबल क्या हो चुका है? इंपेयर्ड हो चुका है। उसके बाद आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं। आप सोच रहे हैं प्यारे बच्चों, एक इंफॉर्मेशन एंड देयर आर 6 ऑडिट रिस्क।
ओनली वन इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 2, एंड देयर आर 6 ऑडिट रिस्क। क्या ये बात समझ आ रही है? जिस बच्चे ने रिस्क के सवाल में सोचने की सलाहियत को बढ़ा दिया, सवाल पढ़ के ये असेस कर लिया एफएस में क्या होना चाहिए, रेलिवेंट आईएफआरएस क्या है, वो बड़े आराम से उसको तभी एफएफआर ऑडिट साथ पढ़ने का कॉम्बिनेशन दिया। बिकॉज यहाँ पे एफएफआर पढ़ते हो, साइमल्टेनियसली यहाँ पे रिस्क और प्रोसीजर्स का आप और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस का आप डिस्कस कर रहे हो। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, हम सारे यहाँ पे डन हो गया सारे यहाँ पे। तो देखे ना, सिर्फ और सिर्फ सवाल का पर्पस क्या था, सवाल में जितना कुछ लिखा हुआ है ये ऑडिट रिस्क नहीं है। कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि कहता है कि 2 साल बाद कस्टमर पैसा ना दे? कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड जो कि कहता है टेनेंट को मुश्किलात पेश की आनी चाहिए? कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड जो कि कहता है 50% पैसा आज लो, 50% पैसा 2 साल बाद? कोई स्टैंडर्ड कहता नहीं है ऐसा। ये रिस्क नहीं है आपका। ये क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन है जिससे एफएस में एक अकाउंटिंग ट्रिगर कर जाएगी, और वो ट्रिगर आपने समझना है कि यार क्या चीज ट्रिगर कर सकती है। वही आपका भाई ये चीज ट्रिगर कर गई आईएफआरएस के हिसाब से, द रिस्क मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। वो क्यों नहीं किया होगा? उसकी जो अकाउंटिंग के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेट से मैनेजमेंट ने वेरिएबल कंसीडरेशन को सही डिटरमाइन नहीं किया होगा। मैनेजमेंट ने आईएफआरएस 15 के हिसाब से रेवेन्यू को मैनेजमेंट ने पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया होगा। रेवेन्यू तो ओवर दी टाइम रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मैनेजमेंट ने इसको क्लासिफाई सही नहीं किया होगा, ये तो करंट एसेट होना, ये तो नॉन करंट एसेट होना चाहिए। मैनेजमेंट ने क्या क्लासिफाई कर दिया होगा? इसके अंदर तो बैड डेट एक्सपेंस है। मैनेजमेंट ने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और लॉस गिवन डिफॉल्ट और ईसीएल ये सही डिटरमाइन नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात आपके समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? ऑनलाइन वाला आपका क्लियर हो बेटा? पॉइंट नंबर 3, छेदी छेदी आ जाए। आराम से बात। इसके एक किताब है जिसमें विंटर 17 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक सारे सवाल और सारे आंसर्स मौजूद हैं। सारे सवाल और ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, क्या कहते हैं, तो अगर हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है तो आईएफआरएस क्या कहता है, तो आईएफआरएस का पैराग्राफ भी लिखा हुआ है ताकि बच्चा क्विकली उसको रिवाइज कर सके। तो पहले अभी आज की क्लास सिर्फ सोचने की है, सिर्फ सोचे बैठ के, एंड में टाइम आप आराम से बैठ के नोट कर लीजिएगा। अभी पॉइंट नंबर 3 पे करें। बच्चों आसान सवाल है यार, बड़ा आसान सवाल है। कैश बैक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, खुदा का वास्ता जल्दी आ जाए। हाँ जी, कौन सी ट्रांजैक्शन है ये किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है? ये रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन है। दो चीज आ गई है इसके अंदर। ये जो ट्रांजैक्शन है ये आउटसाइड दी, ये कंपनी का बिजनेस तो चीजें रेंट पे देना है, शॉपिंग मॉल इनको रेंट पे देना है। ये अपनी ही हेड ऑफिस के 2 फ्लोर, इट मींस इसका बिजनेस नहीं था, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुई है रिलेटेड पार्टी के साथ ये आउटसाइड द नॉर्मल। और जब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो, स्टैंडर्ड क्या कहता है? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? इस चीज को पढ़ के क्या ट्रिगर कर रहा है? आईएस 24। आईएस 24 क्या कहता है? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? द रिस्क इज मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को जल्दी जल्दी मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। आप एक और चीज भी कहेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन है आरपी के साथ, इट सीम्स टू बी आउटसाइड दी, इसलिए यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है और वो रिस्क है रिस्क ऑफ
फ्रॉड का। और फिर इसके प्रोसीजर अगर आपको कैफ के याद हो, प्रोसीजर पढ़ा नहीं रहा लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड वो रिस्क के साथ भी पूछ लेता है, वो परफॉर्मेंस में अलग भी पूछ लेता है और वो रिपोर्टिंग में भी पूछ लेता है। यही हरकत उसने सवाल में कर ली, रिलेटेड पार्टी के कॉन्सेप्ट को इसने यहाँ पे पूछ लिया। तो याद है जब ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती थी तो मैं एग्रीमेंट देखता था टू इवैल्यूएट द बिजनेस और टर्म्स एंड कंडीशन आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। क्या ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है और क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैंने प्रोसीजर नहीं पढ़ने आज, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज समझा जो मैंने पहली क्लास में आपसे कही थी। एक टॉपिक को वो किसी भी एरिया में टेस्ट कर सकता है, वो प्लानिंग में भी कर सकता है, वो परफॉर्मेंस में भी कर सकता है, वो रिपोर्टिंग में भी कर सकता है। अगर सोच आज की क्लास में क्लियर हो जाएगी तो आगे जाके पढ़ने में थोड़ा सा हमें मजा आएगा। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? The construction of 4 residential, अच्छा मैं पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। The balcony of one of the apartment constructed in 2012 fell off, severely injuring 3 persons. The new surface in the median caused severe criticism on the company, and a show cause notice was also received by the FL from a regulatory authority. The management is of the view that the construction was क्या मसला है, बालकनी गिर गई, लोग इंजर्ड हो गए और रेगुलेटर की तरफ से शो कॉज नोटिस भी आ गया। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उसको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। जब कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी तो क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा एफएस में? प्रोविजन। प्रोविजन किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा? IAS 37 के हिसाब से एक प्रोविजन आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बच्चों को यहाँ तक बात समझ, यहाँ 36 नहीं है, ये एसेट की इंपेयरमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको प्रोविजन, इट कुड बी प्रोविजन, इट कुड बी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो कि मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज। बालकनी के पूरे IFRS में बालकनी का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। बालकनी का गिरना इज नॉट द ऑडिट रिस्क, इट इज द रिस्क फैक्टर। इसकी वजह से कोई रिस्क, इसकी बालकनी गिरने की वजह से एफएस में कोई हलचल मच सकती है, और जब एफएस में हलचल मचेगी तो किसी ना किसी IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वही आपका ऑडिट रिस्क। प्यारे बच्चों का यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ तक प्यारे बच्चों? अच्छा जी, बेहतरीन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 residential project started during the year. The project are in the various stages of completion. About 70% of the apartment have already been booked. The company offers different terms to its customer depending upon which options they। प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं, मैं अब आपको क्या बेच रहा हूं? मैं आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट भी कर रहा हूं और उसको सेल भी कर रहा हूं। जब मैं सेल कर रहा हूं तो आप आते हैं, मैं कहता हूं यार 50% डाउन पेमेंट आज दे दो, बाकी 5 सालों में दे देना, सही है? आपको मैं कहता हूं कि यार तुम ले लो प्लॉट, पेमेंट करते रहो और कब्जा लेते रहो। मैं ये भी अरेंजमेंट कर सकता हूं। इट मींस यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जब मैं दे रहा हूं, जब मैं डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा हूं तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कुछ ऑप्शंस मेरे फॉल कर जाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम पे और कुछ ऑप्शंस मेरे फॉल कर जाएंगे भाई जब तक कब्जा उसी वक्त मिलेगा जब तक सारे के सारे पैसे। और आप सोचो, आप देखें अक्सर अगर आप कभी कोई प्लॉट वगैरह बुक कराएं, वो आपको एक कील ठोक के नहीं देखता। आपका अपना फ्लैट है, 1 करोड़ में से 99 लाख रुपए जमा करा चुके हो, 1 लाख रुपए रहते हैं, लेकिन वो आपको एक कील भी ठोकने, वो आप अपने घर में आने के लिए क्या कर रहे होते हो? उस सामने वाले से परमिशन ले रहे होते हो। सुनिएगा मेरी बात को, आप सामने वाले से परमिशन ले रहे होते हो। इसका मतलब है कंट्रोल अभी तक ट्रांसफर्ड हुआ है। जब कंट्रोल ही ट्रांसफर्ड नहीं हुआ, हाँ जी, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। समझ आ रही है ये बात? लेकिन आप सामने सोचे, मैं कहता हूं यार ये प्लॉट है, सही है, इसकी पेमेंट करते रहो और साथ साथ उसको कंस्ट्रक्ट भी करवाते रहो, तुम ये भी करते रहो, तुम इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले सकते हो, तुमने आगे किसी को रेंट पे देना है, इट मींस मैं कंट्रोल ट्रांसफर कर चुका हूं। इसका रेवेन्यू मेरा ओवर दी टाइम लगे, जैसे जैसे पैसा आता रहेगा मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता रहूंगा। क्या यहां तक आपके बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? यहाँ पे मेरे पास अगेन ऊपर एक रेवेन्यू का ऑलरेडी रिस्क था, लेकिन वो शॉपिंग मॉल का था। यहाँ पे एक और रिस्क है मेरा, वो किसके हिसाब से? IFRS 15 के हिसाब से। और IFRS 15 के हिसाब से किस चीज का रिस्क है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रिस्क है। प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है हमें? आप देखें एक सवाल, कितने रिस्क? 10 रिस्क, और हर रिस्क के अगेंस्ट 3 प्रोसीजर्स। तो टोटल आपको पेपर में 40 पॉइंट्स कम्युनिकेट, 40 बुलेट्स बनानी पड़ेंगी। एक ऑडिट रिस्क 1 बुलेट एंड अगेंस्ट 1 बुलेट देयर मस्ट बी 3 ऑडिट रिस्क। मतलब एक रिस्क 3 प्रोसीजर, तो 10 रिस्क 30, तो टोटल 40 पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका
और जो बच्चा फेल होता है ना, उसका ये सवाल गलत होता है। दो बच्चा जो फेल होता है सीफैट में, उसके दो रीजन है। पहला, या तो ये सवाल गलत होता है या ये सवाल बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे हल्फन ये बात कह रहा हूँ, दो रीजन है, फैन बंद कर दो सारे। दो रीजन हैं जिसकी वजह से बच्चा ऑडिट के पर्चे में फेल होता है। पहला रीजन, या तो ये सवाल बच्चा सही कर, देखे ना इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटी है। रिस्क आपने, ये तो 23 नंबर में से अभी आपने 8 नंबर लिए हैं रिस्क के, अगले 12 13 मार्क्स 15 मार्क्स किस चीज के? तो जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसी के अगेंस्ट आपने, ऐसा नहीं कि अगर मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के इम्पेयरमेंट के, और प्रोसीजर मैं लिख रहा हूं कि सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर और कट ऑफ के प्रोसीजर, नहीं, मेरा प्रोसीजर भी क्या होना चाहिए? बड़ा बड़ा कम टाइम होता है आपके पास, 2 से 3 प्रोसीजर लिखना, लेकिन वो प्रोसीजर मस्ट बी स्पेसिफिक टू दैट रिस्क। तो मेरी रिस्क की ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैं उसको बता दूं कि ये रिस्क इस वजह से है, तभी इसके अगेंस्ट मैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? अगर यहां पे मेरा रिस्क फॉर एग्जांपल ऊपर रिसीवेबल के ऊपर रिस्क है, सुनिएगा मेरी बात, बड़े गौर से सुनिएगा, ये मेरा ऑडिट प्रोसीजर पढ़ाना नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, जल्दी छेती छेती, ऑडिट। यहाँ पे रिस्क किस चीज का है भाई? मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को एक ऐसा पोर्शन जो कि मिलेगा ही नहीं, मैनेजमेंट ने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया हो, ऐसा ही है ना? तो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड किया? 70 रुपए से। एक प्रोसीजर लाजमी आना चाहिए, सब्सिक्वेंट रिसिट्स। एक प्रोसीजर लास्ट भाई, अगर आपने 70 का रेवेन्यू, आपको लगता है 70 मिलेंगे भाई? दिखाओ, 1.5 साल गुजर गया, एग्रीमेंट 6 महीने पहले किया था, 9 महीने पहले किया था, आज मार्च में खड़े, 1.5 साल गुजर गया, बताओ कितना पैसा रिसीव हुआ है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी रेवेन्यू का रिस्क है, बट यहाँ पे सब्सिक्वेंट रिसिट्स का प्रोसीजर रेलिवेंट। यहाँ तो आपको क्या देखने पड़ेंगे? एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट में क्या देखनी पड़ेगी? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में क्या देखनी पड़ेगी? ट्रांजैक्शन प्राइस। एग्रीमेंट देख के क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? अकाउंटिंग। दोनों ही रेवेन्यू के रिस्क है, लेकिन दोनों के प्रोसीजर्स अलग है, बिकॉज रिस्क अलग है। दोनों रिस्क रेवेन्यू पे लाजमी है, लेकिन दोनों की एग्जर्शंस अलग है और रिस्क अलग है। प्यारे बच्चे, खुदा का वास्ते, यहाँ पे आपके पास कितने रिस्क है? यहाँ पे आपके पास 3 ऑडिट रिस्क है रिसीवेबल्स के, और तीनों के प्रोसीजर्स अलग हैं। यहाँ पे 3 रिस्क है, किस चीज के? रिसीवेबल्स के, और तीनों के ऑडिट प्रोसीजर्स आपके अलग होंगे। यहाँ पे आपका रिस्क था इंपेयरमेंट का, तो आप मैनेजमेंट से एजिंग लेंगे, चेक करेंगे सब्सिक्वेंटली कितना पैसा रिसीव हो चुका है। मैनेजमेंट की जो एजम्पशंस है, क्या वो एजम्पशंस? लॉस गिवन डिफॉल्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, क्या ये एजम्पशन? लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका रिस्क था, किसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? सिग्निफिकेंट। तो आप यहाँ पे आपका प्रोसीजर होगा कि क्या मैनेजमेंट का डिस्काउंट रेट एप्रोप्रिएट है, क्या फ्यूचर कैश फ्लोज के एजम्पशंस रीजनेबल। आप समझे ना, दोनों ही रिसीवेबल के रिस्क है, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क क्या था? क्लासिफिकेशन का, कितना पैसा आज मिलेगा, कितना पैसा 1 साल। ये सारी बातें कहां लिखी हुई होंगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएं, सारी बातें कहां लिखी हुई होंगी? अब यहाँ एग्रीमेंट में आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं देखनी है, आपने यहाँ पे कैश फ्लोज देखने, और कैश फ्लोज की जल्दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेट का और अच्छा वर्ड बोलो ना, टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो। कितना कैश फ्लो 1 साल तक मिलेगा, कितना कैश फ्लो 1 साल। आप समझ रहे हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, इतना ट्रिकी एरिया है ये। जो आपसे कहते हैं ये कैफ में भी पढ़ते थे, लेकिन ये लेवल सीफएफ का कैफ से थोड़ा सा, और आप देखें कैफ में ऑडिट रिस्क कितना एग्जामिनेबल नहीं होता, वो हर अटेम्प्ट में आपसे वो एग्जामिन नहीं कर रहा होता। हार्डली 2 से 3 पास पेपर्स अगर जो आप लोग भी अटेम्प्ट होंगे, अभी रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है। क्यों? बिकॉज के पास सीफएफ में एक पूरा पोर्शन होता है आपको पूछने का 20-25 नंबर का। और सबसे ट्रिकी पार्ट क्या होता है? योर रिस्क एंड प्रोसीजर्स मस्ट बी aligned, must be integrated, must be systematic, must be synchronized, तभी आप ये पर्चा पास कर सकेंगे। तो पहला रीजन सुनिएगा, दो बच्चे जो फेल होते हैं उसके 2 रीजन है। या तो रिस्क का सवाल बहुत ही घटिया हो जाता है, और समझ आ रहा है घटिया क्यों होता है? रीजन समझ आ रही है? 4 रिसीवेबल का रिस्क है, लेकिन चारों के प्रोसीजर्स अलग है, तो ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है, बच्चा रिस्क का सवाल बहुत अच्छा करता है। कितना अच्छा करता है? इतना अच्छा करता है कि 1.5 घंटा से रिस्क ही करता है। ये रीजन है। जितना भी आपका सीनियर फेल है ना, फॉर्म में आप पूछ लीजिएगा उससे, फेल हुआ है 2 रीजन होंगे। या तो रिस्क का सवाल बहुत अच्छा हुआ, मतलब 1.5 घंटा आपने 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया,
बाकी 1.5 घंटे में आप 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। रिस्क के सवाल की सबसे बड़ी टेक्निक ये है, आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, 23 नंबर का सवाल है, इसको करने के लिए मेरे पास 40 मिनट है। जहां 40 मिनट हुए आप यहां तक पहुंचे हो ना, छोड़ दो। आप यहां तक पहुंचे हैं ना, आप छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाए, आप आगे पेपर अटेम्प्ट करते रहे करते रहे करते रहे। अगर तो टाइम बच गया वेल डन, और अगर टाइम नहीं बचा इट मींस आपका छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल सही था। आपका वो सवाल छोड़ने का, यहां तक इसको अटेम्प्ट करने का डिसीजन बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन, बिकॉज अगर आप मजीद टाइम लगाते तो आपका आगे जाके कोड ऑफ एथिक्स का सवाल मिस हो जाता, जो कि स्ट्रेट किताब से छापना था पॉइंट, और उसमें सोचना ज्यादा था। कोड ऑफ एथिक्स का सवाल, मसला क्योंकि सवाल ऐसा आ रहा है कि उसमें बच्चे को 15 मिनट मिलते हैं उसको करने के लिए, 10 मिनट से बच्चा सोचता है कि सेक्शन कौन सा अप्लाई और ओपन बुक है। तो वो जो सोचने वाले सवाल है वो बच्चा अगर एंड में लेके बैठेगा तो उस वक्त आप वैसे स्ट्रेस में, यार 1 घंटा रहता है और 50 नंबर का पेपर रहता है। अब मुझे पता ना 1 घंटा रहता है, 50 नंबर का पेपर रहता है आपका, आप क्या सोचेंगे, क्या किताब खोलेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप सोचो। और एक सवाल आप 1 पेज का पढ़ेंगे, आप देखेंगे अभी 1 घंटा रहता था, अब तो 50 मिनट रहता है। अब फिर आपको जो समझ आ रहा होगा ना, फिर आप कहेंगे यार अब तो मैं फेल हूं, बस अब मैं लिखना स्टार्ट करूं, जो समझ आ रहा है लिखना स्टार्ट करूं। एक सवाल 10 मिनट भी आपके ऊपर लेता है ना, इट विल कॉज योर पेपर प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है। फाइनल में से भी एडवांस ऑर्डर का नहीं बता रहा, ये ओवरऑल आपको सारे सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। कैफ की दुनिया अलग है बिल्कुल, सीफैप एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया है। क्या क्लियर हम सारे यहाँ पे? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से हमने 6 रिस्क आइडेंटिफाई करे, एक बुलेट पॉइंट से हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए? 6 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। फिर अगला स्टेप है उस रिस्क के अगेंस्ट हमने प्रोसीजर्स लिखने हैं। डन है यहाँ पे? आप इसको नोट करें मेरे दोस्त। यार पानी लेकर आओगे अब्दुल रहीम में? एज्यूम किया ना मैंने तो यार, आपने बैठ के पेपर में अकाउंटिंग करनी नहीं है भाई, आप एज्यूम भी ना करें, आप तो अपने पार्ट पे सोचें एक चीज। तो मैंने आपको समझाने के लिए रेवेन्यू 70 लिखा है। यार एग्जामिनर कहता है रिस्क का एक रिस्क का 1 मार्क और हर प्रोसीजर का 0.5 मार्क। मतलब मैंने अगर एक लाइन कंप्लीट करूं ना, एक रिस्क बताऊं और उसके अगेंस्ट 3 प्रोसीजर बताऊं तो मुझे 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो 25 नंबर के लिए मुझे 10 रिस्क बताने पड़ जाएंगे, 8 से 10 रिस्क बताने पड़ जाएंगे। जी मेरे भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहां से आया? सवाल में लिखी हुई एक चीज देखें, मेरी बात सुनिएगा, इसका सवाल बड़ा रेलिवेंट है, सुनिएगा, लेकिन रिस्क रेलिवेंट नहीं है। सवाल ये कैसे, मैंने तो टेनेंट से क्या लिया हुआ होगा? डिपॉजिट। डिपॉजिट आपने मॉल आज नहीं बनाया है, मॉल तो 10 साल पुराना बना हुआ है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आप ऑलरेडी 10 साल पहले ले चुके हो। जब एक चीज ऑलरेडी 10 साल पहले ले चुके हो तो उस पर आज कोई रिस्क आइडेंटिफाई करोगे? आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट करंट ही होता है मेरा प्यारा भाई। आप मेरी एक बात समझ लें, एक अकाउंटिंग को, एक बेसिक चीज अकाउंटिंग की समझने की कोशिश करें। आपने गैस का कनेक्शन लिया हुआ है घर में? गैस का कुंडा तो नहीं लगाया ना भाई, गैस का कनेक्शन है ना। जब गैस का कनेक्शन है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है? एसएसजी को दिया हुआ है। 3 महीने का उनकी पॉलिसी है, वगैरह की पॉलिसी, 3 महीने का आपने, जो आपका एवरेज 3 मंथ्स है गैस सेल्स का, उसका आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, ठीक हो गया? एसएसजी को कहां क्लासिफाई करें? करंट में। क्यों, कब दिया है तूने? 10 साल पहले। अब्बू ने दिया होगा आज से 20 साल पहले। करंट कहां से आ गया? नहीं प्यारे बच्चों, अगर आज आप बैठ के एसएसजी को बोलो ना मेरा गैस का कनेक्शन टर्मिनेट करो, तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि एसएसजी इज लायबल टू पे यू विद इन 3 मंथ्स। तो एक अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है एसएसजीसी के ऊपर कि वो आपको 3, जब वो मांगेगा तो आपको, मतलब वो कभी भी मांग, जब वो चीज कभी भी मांग सकते हो और आपको 3 महीने के अंदर पे करनी है, इट मींस इट इज योर करंट लायबिलिटी। तो एसएसजीसी को करंट लायबिलिटी दिखाता है और ये आपका करंट एसेट होता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? दिस इज योर करंट, बिकॉज सामने इररिस्पेक्टिव मैंने 20 साल से नहीं मांगा, लेकिन आप मांग सकते हो। अगर मांगोगे और वो आपको बोलेगा पैसा मैं 1 साल के बाद दूंगा, अब नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं 3 महीने के अंदर पे कर दूंगा, दैट इज योर करंट लायबिलिटी।
बिकॉज इसके ऊपर एक अनकंडीशनल कोवेनेंट ब्रीच होते हैं। बैंक ने पैसा मांगा नहीं है, लेकिन कहां क्लासिफाई कर देता हूं मैं? क्यों करंट लायबिलिटी? बिकॉज बैंक मांग सकता है, और जब मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा, तो मैं मना नहीं कर सकता। आई हैव एन अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे दैट अमाउंट, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। क्लियर है सर? ये तो पुरानी चीजें होंगी ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगेन, अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, इतना टाइम बचेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिस्क लेने का? सोचे मेरी बात, जो चीजें रेलिवेंट है, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप 10 रिस्क भी पेपर में नहीं लिख पाएंगे। तो वो चीज जो सवाल में दी हुई उसके ऊपर लिखो, जो दिया हुआ ही नहीं है उसके ऊपर लिखने का फायदा नहीं है। सॉरी, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों जल्दी से नोट करें इसको यार, इसका फ्रेम सही करोगे, थोड़ा सा इसका फ्रेम स्ट्रेट रखोगे। उस साइड दिखाओ, वहां पे रिस्क लिखे हुए हैं अब्दुल रहीम। ऑनलाइन वालों क्लियर हो बेटा? यार हैंड आउट रेडी है? अब्दुल रहीम साहब नोट कर लिया है बच्चों? हम अभी सिर्फ और सिर्फ क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्यारो? जल्दी से, छेती छेती। हम सिर्फ और सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उधर भी पास करवा दो यार, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरी इधर भी पास करवा दो। बच्चों क्लियर है हम यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है यार? चला जाए एक और सवाल। बच्चों आ जाए यार, स्टार्ट करें। क्वेश्चन पढ़े नहीं है ना।